رامین، فریدہ، ڈاکٹر. ڈاکٹر میں تم سے مخاطب ہوں. ہاں جی. ارے جب تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو صبح تک کیوں پیتے رہتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ پینا وینا کیسا؟ میں تو ٹی وی دیکھ رہا تھا. اچھا کیا پینے کا بول رہا ہوں میں؟ کچھ گرم میوے کھا لو، تمہاری رال ٹپک رہی ہے. جی اچھا. جی بابا. رامین سے کہو اپنی ماں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے نیچے لے آؤ، اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ. کیا ہوا ہے بابا؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. یہ بتاؤ مریم کہاں ہے؟ رات کا کھانا بنا کے گئی ہے. ارے کیوں جانے دیا اسے؟ مہمان آنے والے ہیں، اب تمہیں کام کرنا پڑے گا. جی اچھا. اٹھو اور ذرا ہاتھ منہ دھو لو، اور تمہاری آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں؟ چھی اٹھو. جی اچھا. چچا جان، میں صرف یہ دیکھ کے آتا ہوں کہ سب کا حجاب درست ہے یا نہیں. آپ تشریف رکھیے یہیں. دادا جان، خدا کے واسطے دیر ہونے سے پہلے واپس لوٹ چلتے ہیں. یقین کیجیے تایا نے آپ کو صرف اس لیے یہاں بلوایا ہے تاکہ آپ سب کے سامنے ان سے معذرت خواہی کریں. کس بات کی معذرت؟ ان کے بیٹے کو غلط فہمی ہے، میں کیا کروں؟ لاؤ مجھے دو یہ کتاب. جی نہیں. تو پھر میرا دل خالی مت کرو، صرف خدا کو مد نظر رکھو. کہیں لوگوں کی ایسی آسائشیں دیکھ کر حسد کی بنا پر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہماری بات خدا کی طرف سے ہے اور ان کی بات شیطان کی جانب سے. جی میرا دھیان ہے. اور اگر ان لوگوں نے تلخ برتاؤ کیا تو خود پر قابو رکھنا، اور بد کلامی کا جواب بد کلامی سے مت دینا. یہاں تک کہ میں رب شرلی صدرلی پر رہی. آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. خوش آمدید، سب آپ کے منتظر ہیں. تشریف لائیے، تشریف لائیے. خوش آمدید. وہ میں کہہ رہا تھا دینا صاحبہ، آپ اپنا بم دے دیجئے، ہم اسے پھس کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. ارے فریدہ صاحبہ، آپ پھل لے کے کیوں آ گئیں ابھی سے؟ ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا ہے بھائی. ارے چچا تشریف رکھیے، آپ لحاظ کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے دینا صاحبہ، بہت خوشی ہوئی ہمیں. ارے آپ ہیں آغا صاحب؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام دینا صاحبہ. جلیل، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ حاجی صاحب اور ان کی پوتی ہمارے مہمان ہیں؟ تم نے کیوں نہیں بتایا شاہین؟ بھائی بات کا مزہ ختم ہو جاتا نا. کون سا مزہ ختم ہو جاتا؟ امی جان، اب جو ہوا سو ہوا. ہمیں صرف اتنا ہی پتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ مہمان ہیں. آپ کھڑے کیوں ہیں حاجی صاحب؟ تشریف رکھیے نا. بیٹا دینا آؤ نا، آئیے ادھر اپنے بھائی کے پاس بیٹھیے. ہو کیسے ہو میرے افسوس زدہ اور بے سہارا بھائی؟ میرے گھر جو آئے ہو تو کیا واقعی کھلا دل لے کے آئے ہو یا نہیں؟ دراصل میں اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ دراصل میں جلیل منہ بند کرو تم دونوں. تمہیں یہ زبان کی لکنت کا عرضہ کب سے ہو گیا؟ میں نے کہا کہیں تم جاویدیان کو دیکھ کے گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ میں نے خود ہی کہا ہے کہ شاہین تمہیں یہاں لے آ. یہاں ذرا اپنے پن والا مجمع ہے، ہم آرام سے بات کر سکتے. الحمدللہ. الحمدللہ کیا؟ خوش ہو، ناخوش ہو، ہار مانے ہوئے ہو، کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر تم پچھتا چکے ہو تو میں شاہین سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہیں واپس لے جائے. جلیل، یہ کیسا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ارے آپ اب تک کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیے نا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے بیگم صاحبہ، میرا یہ چھوٹا بھائی تب تک نہیں بیٹھے گا جب تک اس کا بڑا بھائی اسے اجازت نہ دے دے. دیکھو تو ذرا، اس کا سر جھکا ہوا ہے اور مجھے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہے. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور اپنی بات کرو. بیٹھو. بھائی کیا کہا میں؟ ذرا زور سے میں کرو. خلیل دیکھو تو ذرا. جلیل جو ساری زندگی تمہارا خیال رکھتا تھا تمہاری بات سن رہا ہے. میں چاہتا ہوں تم سب کو بتاؤ کیسا کیا ہوا ہے کہ تم تحفات میں لیے میرے گھر منہ اٹھا کے چلے آئے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیوی، بیٹی اور بیٹوں کے علاوہ میرا داماد اور میری 2 چھوٹے سے پوتے بھی لفظ ب لفظ تمہاری بات سنیں. دادا جان آپ اجازت دیجیے، میں خود انہیں سمجھا دیتی ہوں. تم خاموش رہو.
भाई ये काली चादर वाली कौन है जिसे तुम अपने साथ ले आए? देखी भाली सी लगती है। अरे बाबा, ये दीना साहिबा है ना भाई, चाचा की पोती। इंशाल्लाह आप लोगों की गुफ्तगू खत्म होने के बाद इनका भरपूर तारुफ भी हो जाएगा। हाँ, ये तुम्हारे उस कारीगर बेटी की बकाया जात है। जी हाँ, मैं वही हूँ। चचा जान, मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने तुम्हारा सलाम नहीं सुना। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने सलाम किया है। खलील की तरबियत याफ्ता बच्चों से इसके अलावा और कोई तवक्को नहीं की जा सकती। बेटा, वहीं बैठो और सिर्फ बड़ों की बातों को सुनो। हाँ, तो तुम कुछ कह रहे थे जनाब सैयद खलील साहब। बेहतर ये होगा कि वहां से बताओ जो तुम कंपनी आए थे और जबान चलाई थी और उसके बाद के वाकयात। बाबा ये सब क्या हो रहा है? अगर कंपनी वगैरह ही की बातें करनी थी तो फिर यहाँ आप पे हम... दखल अंदाजी मत कीजिए। जब आपकी जरूरत होगी आपसे भी पूछ लूंगा। भाई, मैं माफी मांगने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप इजाजत दे तो मैं समझा जी देती नहीं, हूँ। मैं इजाजत नहीं दूंगा। पहले भी कहा मैंने था। सुना जो आपने फरमाया चचा जान, लेकिन जब दादा जान को ये मालूम ही नहीं कि उन्हें किसके बारे में आपसे माफी मांगनी होगी तो वो समझा भी नहीं पाएंगे। माफी चाहता हूँ दीना साहिबा, मैं हमेशा जरा देर से बात को समझ पाता हूँ। क्या फरमाया आपने वैसे? दरअसल ये मैं हूँ जो माफी मांगने और कदरतों को दूर करने के लिए हाजिर हुई हूँ। अलबत्ता मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने मौजू की वजाहत नहीं की थी आपके साहबजादे के हुजूर, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि आपको देख सकूं और हालात भी कुछ साजगार नहीं थे, इसीलिए मैंने मजबूरन उन्हें असली बात नहीं बताई थी। हाँ, कोई बात नहीं दीना साहिबा, अलबत्ता आपकी वही वजाहतें भी काफी होती। मैंने तो रास्ते में ही आपसे कहा था कि कदूरत तो बिल्कुल आने जाने वाली शय है, मगर बिलाखिर इंशाल्लाह सिर्फ अच्छाइयाँ ही रह जाएंगी। ये वो ख्याल था जो आपने सोचा था शाहीन साहब। मैंने आपसे कहा था कि हम आपके बाबा को माफी मांगने और कदरतों को दूर करने के लिए देखें, बिल्कुल सही, लेकिन जहाँ वो अकेले हों। इसकी असल वजह ये थी कि जो मनफी जवाब मैंने आपको दिया था उसकी माजरत मैं सबके बीच में करूं, ताकि इस बिना पे जो तकलीफें मेरे दादा जान को पहुंचा रहे हैं उनकी रोकथाम कर सकूं। खुदा की कसम, मैंने किसी दुश्मनी और किनिया व कदूरत की वजह से आपके बेटे को मनफी जवाब नहीं दिया था। दीना, अब बस भी करो। दादा जान, मुझे यकीन है, बल्कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि अगर मैंने शाहीन साहब को मुस्बत जवाब दिया होता तो उनका बर्ताव आपसे आज बिल्कुल ही अलग होता। अब अगर मेरी माजरत ख्वाही कदरतों को खत्म कर सकती है तो मैं यहीं पर सबकी आंखों के सामने आपसे माफी मांगती हूँ। यकीन कीजिए, मैंने इसी तरह की नामुनासिब चीजों की बिना पर शाहीन साहब के रिश्ते का इनकार किया था। अलबत्ता मुझे नहीं मालूम था कि ये बात शाहीन साहब को इतना नाराज कर देगा कि फिर वो दादा जान की दुकान के खरीदारों को भगाने लगे। दीना, माफ कीजिएगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दुकान की फरोख्त और भगाने का क्या माजरा है? शाहीन, तुमने क्या किया है? दीना साहिबा, वैसे शाहीन के रिश्ते का मामला इतना भी संजीदा नहीं था। ठीक है ना, अब सब कुछ वाजे हो गया है और दीना साहिबा ने भी माफी मांग ली है। मैं तो कहता हूँ आगा साहब, अब बेहतर ये होगा डॉक्टर कि साहब हम... प्लीज, आप इस मामले की सफाई पेश मत कीजिए। मामा आइए आप अपने कमरे में चलिए। जरा मैं भी तो देखूं ये क्या चल रहा है। शाहीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे छोड़ दो, तुम जाके अपने चचा को तंग करने लग गए। भाई ये लड़की झूठ बोल रही है सरासर। शाहीन, अरे भाई, हम तो खामखा फंस गए भाई। जनाब, मैं सबके सामने कसम खाने को तैयार हूँ, इसने ये सारी बातें रास्ते में खुद बनाई हैं। चाचा जान, आप तो झूठ नहीं बोलते ना, आप बताइए वो कौन था जिसे घर की तरफ आने का पता चला तो फौरन वापस चले की बातें करने लगी? हाँ, क्या वो दीना साहिबा नहीं थी? खुदा मेरी पोती को कभी माफ न करे अगर उसने कुछ गलत बोला हो तो। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो तुम्हारे सर से पांव तक वफादारी टपक रही है, उसके तहत तुमने अपने प्यारे बेटे की औलाद का खूब फायदा उठाया है। क्या आखिरत बनाई आपने आगा सैयद खलील साहब। लगता है तुम्हारे सारे बेटे सब के सब एक से बढ़कर एक और वफादार और चालाक हैं। चचा जान, दीना, अगर मुझे मालूम होता कि ये किस्सा तुम्हारे घर तक कौन सा किस्सा? तुम्हारी चालाक पोती की मुआफी का किस्सा खलील साहब। जाहिर है कि नहीं। मतलब तुम रास्ते के बीच में अपने घर वापस नहीं जा सकते थे कि मामला यहाँ तक न पहुंचे? मेरी पोती और मैंने काफी कोशिशें की थी। कोशिश की थी, या तुमने ये सोचा कि मेरी बीवी बच्चों के सामने चंद मुट्ठी भर मुफ्तों की खातिर मेरी बेइज्जती करवा सकोगे? ऐसा लग रहा है कि तुम भी यही चाहते हो मेरे भाई। जाहिर है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इन बच्चों के सामने ये सुन सकूं कि तुमने मेरी पीठ पीछे किस किस को क्या कहा है। मैं परेशान हूँ भाई, अभी भी तन्हाई में बैठने की मोहलत बाकी है। बहुत खूब, ठीक कहा चाचा जान आपने, बिल्कुल ठीक। रामीन, उठो, अम्मी को ऊपर ले जाओ। फरीदा साहिबा, उठो लड़के, बच्चों। क्या तुम्हारी कुर्सी में कीलें लगी हुई हैं जो खड़े हो जाते हो? बैठ जाओ। जी अच्छा।
आज ये देख रहा हूं कि मेरा सर झुका के फर्मा बरदारी करने वाला भाई आज अपने बड़े भाई से बहस करने लगा है। ठीक है, हम मुआफी का किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है? अब जरा ये बताओ, किस लिए अपनी पोती के साथ साजिश के तहत मुझसे मिलने चले आए? चाचा जान, ये मामला अब जहां भी खत्म होगा इसकी वजह आप और दीना साहिबा ही होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मालूम हो आप क्या कर रहे हैं। जलील, मैं यहाँ बहसबाजी और तुमसे हाजिर जवाबी करने नहीं आया हूँ। फजूल की बातें मत करो धोखेबाज खलील साहब। अभी मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिन्हें जबान की नरमी और चर्बी से धोखा दिया जा सके। हम उस वक्त भाई भाई और चाचा जान जैसे अल्फाज की लाज रख सकते थे कि जब बात मुआफी तलाफी पे खत्म हो जाती, लेकिन जो झूठ और मक्कारी का दामन थाम के मेरे घर में आए, मैं उसका ना तो भाई हूं और ना ही कोई और रिश्तेदार। अब तुम ये बताओ कि तुमने मेरे बारे में किससे क्या सुना है ताकि मैं तुम्हें जवाब दूं। मैं ऐसी मासियत नहीं करता, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि अपने घर वालों के सामने ऐसी बातें करो तो ठीक है। ये मैं चाहता हूं? इसलिए नहीं आया हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं और दूसरों की बातें करो। तुम फिर बातों को घुमा रहे हो हाजी साहब। तुम अपनी इन्हीं हरकतों के जरिए मुझे धमकी देने आए हो कि अगर मैंने तुम्हारी बातों पर अमल नहीं किया तो तुमने जो कुछ सुना है वो मेरी बीवी को बता दोगे। लेकिन तुम बेवकूफ हो। जलील तुमसे ज्यादा बड़े बड़ों के धमकाने के दबाव में नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यही तंग करना और खरीदारों को भगाना जो तुम्हारी पोती कह रही है, अगर ये खुद मेरा काम होता तो कौन है जो मुझसे सवाल कर सके? आखिर कौन है जो मुझसे इसका जवाब मांग सके? इस घर से बाहर के हिसाब मांगने वाले? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे क्या धमकी देने चले आए? तुम खामखा ये बातें कर रहे हो होशियार आदमी। तुम जिस चीज की तवक्को रखते हो वो नहीं सुनोगे। हाय हाय, मेरे मुंह पे झूठ। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए खींच के लाया हूँ ताकि जो चीज मैं नहीं कह सकता वो तुम्हारे सड़े हुए मुंह से अदा करवा सकूं? हाँ, तो फिर देखो तमाशा। मैं सबसे पूछता हूं, अगर मैं एक चोर लोगों का माल हड़प जाने वाला शख्स हूंगा तो क्या इससे तुम लोगों को कोई वास्ता है? जलील, कम से कम बच्चों के सामने अच्छा है कि बच्चे भी सुने, ये लोग भी सुने। तुम बताओ डॉक्टर, अगर मैं कुछ बहादुरी, लिहाफ सीने वाले गफूर और महालूजी और काशानी वगैरह जैसे अफराद का हक खा जाऊं जो कि मेरे इर्द गिर्द सिर्फ इसलिए जमा होते हैं ताकि अपनी चालाकी के जरिए मेरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल कर सकें, तो तुम्हें कोई एतराज होगा इससे? लेकिन आपने कभी नहीं खाया। मैंने पूछा तुम्हें कोई एतराज है? जो हुक्म नहीं होगा। तुम बतावा दिया। मेरी तरफ देखो, इधर देखो मुझे। अगर मैं तुम्हारे अलावा 10 बीवियां रखता हूंगा और फिर उनमें से एक का हाथ पकड़ के इस घर में ले आऊं, तुम एतराज करोगी? बाबा, अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। तुम मुंह बंद रखो अपना। बल्कि तुमने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे माजूर किया है। अब तुम ही बताओ, मैं शाहरुखी पर दबाव डालूं और इसी महीने के आखिर तक उसकी बेटी से मैं खुद निकाह कर लूं, तो तुम्हें एतराज है? जवाब दो। मर्द बनो और बात करो। एतराज है तुम्हें? तुम बताओ फरीदा, अगर तुम्हारा बाप एक तुमसे भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करके उसे घर में ले आए, तुम्हें कोई एतराज है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस बात पे हैरान होके कह रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई जबान नहीं चलाता। जानना चाहते हो क्यों? जब मैं तुमसे मुखातिब हूं तो मेरी तरफ देखो। हाँ, इसलिए अगर मैं ना रहूं तो ये सब भूख से मर जाएंगे। फिर ना तो इनके पास रोटी होगी न पानी। ये लोग भी और वो सब अफराद भी जिनकी तुम सिफारिश करने आए हो, और तुम खुद भी। मैं सच कह रहा हूं, अगर बचपन से आज तक तुम्हारी फिक्र न करता तो आज तक तुम बीवी बच्चे वाले होना तो दूर, बल्कि आज तक तुम भूख से मर चुके होते और तुम्हारा कफन भी गल चुका होता। क्या ऐसा नहीं है? फर्ज कर लें कि खुदा ने ऐसा चाहा होगा। अगर खुदा ने ऐसा चाहा तो अपनी पोती की मक्कारियों का सहारा लेने वाले अब तुम्हारी मेहंदी में रंग नहीं है। मेरे ख्याल से जब तुम इतने से थे तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब 4 लोगों के बीच में हल्के पड़ने लगो तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करो। अब हमारी बिल्ली और हम ही से मियाऊं? उठो और उस तोहफे को और अपनी पोती को भी ले जाओ।
हम ना तोहफा लाए हैं और ना ही किसी किस्म का दबाव डालने आए हैं। चाचा, अब ये बातें बार बार मत दोहराइए और अगले को बोलने का मौका दीजिए। तो फिर किस लिए आई हैं आप बल गया लिया? माफी मांगने आई हैं तो चलो मांगो। अच्छी वकील लाए हो अपने साथ खलील साहब, बेहतरीन वकील है। ठीक है, हम सुन रहे हैं, अपना लतीफा सुनाओ। दादा जान चलें। क्या मतलब है दीना साहिबा? आप यहाँ तक आ गई सिर्फ ये बताने के लिए कि किसी काम से नहीं आई है? ये क्या बात हुई? जलील, मैं सिर्फ खुदा की बख्शिश और उसके अजाब का खौफ दिलाने के लिए तुमसे मुलाकात को आया हूं। हाजी साहब माफ कीजिएगा, मैंने ठीक तरह से सुना नहीं। आपने क्या फरमाया? जलील, देखो, सिर्फ खुदा ही वो है जो मुकद्दर में लिखता है लोगों के पास क्या हो और क्या ना हो। मेरी बातों का मकसद खुदा की आज की धमकी और कल खुदा के सवाल जवाब हैं। ये लोग जो आज तुम्हारे खौफ से या तुम्हारे मालूमता और पुष्टपनाही गंवा देने के खौफ से तुम्हारी हर बात पर खामोश हैं और तुम्हारी तायीद कर रहे हैं, ये हमारी उस माँ से ज्यादा दिलसोज नहीं है जो कल मैशर में खुदा के खौफ से अपने बेटों के नाम तक भूल जाएगी। जलील, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कब्र की कसम है, इस अजीम महीने की और कुरान और इंजील और तौरेत के नुज़ूल की कसम है। होश में आओ, जिसका हक तुमने खाया है वो लौटा दो, ताकि खुदा के पास इन अजीम दिनों के अंदर तुम्हारी गलतियों को माफ करने का बहाना मौजूद हो। जलील, खुदा की खुदाई की कसम, दुनिया का कब्रिस्तान ऐसे मगरूर लोगों से भरपूर है जो दुनिया में आए तो हाशिया नशीनों ने उनके कानों में यही जुमले कहे थे कि तुम खुदा के खास बंदे हो, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते तो सारी मखलूक की लानत मलामतें उनके साथ थीं। जलील, होश में आओ, जिंदा जावेद सिर्फ खुदा ही है। होश में आ जाओ, क्योंकि अफसोस किसी के लिए भी अच्छा तो शेख आखिरत नहीं है। आपका आवाज खत्म हो गया मौलाना साहब, आप चाहे तो हम लाइटें बंद कर दें, अच्छा समा हो जाएगा। मुंह बंद करो अपना, किस बात पे हंस रहे हो? तुम्हें अभी तक लतीफे और संजीदा बातों का फर्क नहीं पता? मौलाना साहब, तुम्हारी सारी नसीहतें कबूल हैं, सारी नसीहतें कबूल हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं तुम्हारी पॉकेट में कितना रखूं, आपस की बात है, तो मेरी सिफारिश भी अपने खुदा से कर दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि बकौल तुम्हारे खुदा ये चाहता है कि मेरे पास दुनिया रहे, तो अगर मैं ये चाहूं कि मेरे पास आखिरत भी हो तो मुझे इसके लिए कितने देने होंगे? हाँ, लोग ये समझते हैं कि उनकी रजा ही खुदा की रजा है, मगर मैं जो कि ये जानता हूं कि खुदा की रजा तुम जैसों की रजामंदी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जन्नत अपनी तमाम तर रौनकों के साथ, अपनी तमाम तर रौनकों के साथ फी चेक कितने की पड़ेगी? दांत अंदर करो, अब तुम शुरू हो गए। माफी चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, भाई फरीदा साहिबा, अब इंसान ये तो नहीं मान सकता ना कि आपके मोहतरम चाचा जान सिर्फ वाज और नसीहत के लिए यहाँ आए हैं। आप खामोश रहे डॉक्टर। जी अच्छा अम्मी, जो हुक्म। दादा जान, मैं नहीं समझती कि अब हमारा यहाँ रुकना कोई मकसद रखता है। दीना साहिबा, माफी चाहता हूँ। वैसे आप हमारे वालिद साहब को इतना तो हक दीजिए। हम समझ रहे थे कि आप नेकी के लिए आई हैं, मगर ये तो नहीं मालूम था कि आप अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की सरकारी वजारत की जानिब से आई हैं। आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत दीजिए शाहीन, किसी को आपकी फहमो दराक की कुव्वत से इससे ज्यादा तवक्को थी भी नहीं। वैसे एक सादा लोग बुजुर्ग की बातों को समझने के लिए ज्यादा होशियारी और समझदारी की जरूरत नहीं है। तो फिर और क्या चाहिए आलिमा साहिबा? ईमान और अकीदा चाहिए होता है। जरा सी शराफत भी काफी है चचा। दादा जान चलें। दीना, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा माफ ही? कीजिएगा दीना साहिबा, हमने आपका हाथ मांगा है, यानी मांगा था, ठीक, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आपका जो दिल चाहे हमारे घर वालों को बोल दें। तुम चुपचाप बैठे रहो, या तो अपनी इस दाद देने वाली चेली को लेकर यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ, या फिर मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि उसकी लंबी जबान को उसके हलक से। ताज्जुब है मुझे खुदा की हिकमत पर। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी मिसाल उस पहाड़ की सी है जो दूर से बड़ाई का पैकर है, लेकिन करीब से देखो तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर है, कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर मैं नसीहत करने के लिए इतना बेचैन ना होता। वो सच कह रहा है दीना, अपनी जबान संभाल के बात करो कि ये शख्स काफी अरसे से किसी भी जात और शख्सियत की तौहीन करने में कोई खौफ नहीं रखता। मतलब कोई अकीदा ही नहीं बाकी रहा जिसकी खातिर इसे कोई खौफ या लिहाज हो। तुम पागल हो गए हो या दिमाग सठिया गया है तुम्हारा?
सब कुछ बोलने के बजाय मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तो तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम नसीहत करने के और मैं नसीहत सुनने के लायक हूं। किसे खुदा पर अकीदा नहीं है? हाँ, जरा एक नजर मेरे इस घर को देखो। ये मेरी जिंदगी का सिर्फ एक कोना है। ये बीवी है, मेरी पहली बीवी, बीमार है मगर खुदा का शुक्र है कि अब तक सांस ले रही है। ये दोनों मेरे बेटे हैं और वो मेरी बेटी है। ये तीनों ही मेरे फर्माबरदार और ताबे हैं। वो मेरा दामाद है। वो दोनों छोटे से मेरे पोते हैं जो दूध, शहद और अंडा जब तक न खा लें अपने स्कूल नहीं जाते। और ये रहा मैं, मोटा ताजा खुशहाल। अब तुम खुद को देखो और अपने इस होलिये को देखो और अपने उस घर को देखो जो किसी भी वक्त तुम पर और तुम्हारे घराने पर गिर सकता है। और अपनी इस यतीम पोती को तो देखो जो अपने आप को मेरे बेटे से जोड़ना चाहती है। अपने उस प्याला चोर बेटे, अपनी बीवी और उस बेटे को देखो जो सब के सब मर चुके हैं। अब जरा ये बताओ कि जिस खुदा का तुम ये समझते हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, असल में वो किसके साथ है, तुम्हारे या मेरे? अब बैठ के मुझे देखते ना रहो, जवाब दो मेरी बात का। बार बार ये मत कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रन लिल्लाह। ये दो अल्फाज तो हर अरबी ना जानने वाला भी बोल सकता है। खुदा की शान इससे भी बुलंद है कि वो मुझ गरीब के साथ हो या तुम जैसे अमीर के साथ हो। तुम अगर खुदा के साथ भी होते तब भी कोई कमाल ना होता। कमाल तो उसने किया है। खुदा के वापस लेने पर भी कहता है या अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रनिल्लाह। खुदा रसूल की कसम खा सकता हूं जनाब सैयद खलील साहब, ये खाम ख्याली है, सिर्फ खाम ख्याली है। दुनिया से पीछे रह जाने वाले ऐ सादा लो इंसान, अगर मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा था तो सिर्फ इसलिए कि मैंने सोचा इसी खुशफहमी में तुम्हारी बाकी मानदा जिंदगी भी गुजर जाने दूं। लेकिन आज जबकि तुम वाज़ो नसीहत करने चले आए हो तो मैंने सोचा कि आज बोल ही दूं। जानते हो खलील, तुम्हारा दूसरों से क्या फर्क है? वो लोग अपने खुराफात से दूसरों को बर्बाद करते हैं और अपनी रोटी पानी कमा लेते हैं, मगर तुम अपनी इन बातों से अपना भी नुकसान करते हो और अपने साथियों का भी। ये बताओ, तुम अपनी दुकान उस बेटे को क्यों नहीं दे देते कि जिससे तुम और तुम्हारी बीवी भी इफलाक से निजात पा जाओ और ये लड़का भी कुछ काम कर सके? अगर मेरा बेटा मेरी दुकान मांगता तो मैं दो हाथ से उसके हवाले कर देता। हाँ? वो उन्हीं लोगों के पीछे है जिनका तुमने अभी जिक्र किया। वही लोग जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं ताकि अपना भला कर सके। अगर उसे दुकान भी दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पहुंचने की दौड़ में उससे भी गवा देगा। या तो अपने ताया के आगे पीछे घूमता रहेगा या बाप के पांव से पांव मिला के चलेगा। अपने ताया के साथ चलना ठीक रहेगा या अपने बाप के साथ? हाँ, क्या बेहतर रहेगा? किस काम को फनकारी कहा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे यहां नसीहत करने नहीं आए हो। तुम अपनी शिकस्त खाए हुए लश्कर की इस बकाया जात के साथ यहां इसलिए आए हो ताकि मुझे और मेरे घर वालों को वाज सुनाओ। लेकिन दरअसल तुम हमें भी अपनी तरह लाचार बनाना चाहते हो। ये बताओ कि क्या बंदगी असल में बेनियाजी को नहीं कहते? अब मैं तो बंदगी कर रहा हूं, सबूत यह है कि उसने मुझे बेनियाज कर दिया है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी बेनियाजी कहां है? मेरी मोहताजी और तुम्हारी बेनियाजी कहां है? मेरे दिल की बेनियाजी उस सब्र और कनात की वजह से है जो खुदा ने मुझे दी है। तुम्हारी जेब की बेनियाजी हराम माल जमा करने की वजह से है। मेरी बेनियाज जेब ने मेरे दिल को भी बेनियाज कर दिया है। तुम्हें किसने कहा कि मेरा माल हराम है? हाँ, बहादुरी बद्दहान या फिर उस खुदा ने जिसने तुम्हें मेरे पास ये कह के भेजा है कि मुझे आके तुम ये बताओ कि बेनियाजी सब्र और कनात को कहते हैं? हाँ, जवाब दो मुझे। खुदा की कसम आप सच कहते हैं चचा। मेरे दादा जान की इस कदर सब्र कनात भी ठीक नहीं है। उस वक्त जबकि उन्हें ये मालूम है कि बाकी अफराद उनका हक मारे हों फिर भी ये खामोश रहते हैं। ये लो भाई, अब दुल्हन रानी की बातें भी सुनिए। तुम कौन से हक और हुकूक की बात कर रही हो? हाँ, जब रात को घर जाओगी तो अपने दादा जान से पूछना
کہ اس جلیل نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. وہ تب کی بات تھی جب آپ خدا کو خدا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بندہ. اس وقت اپنی ذات کو خدا نہیں بنایا تھا آپ نے، اور لوگوں کے پہاڑوں پہ اپنا محل نہیں بنایا تھا آپ نے. چچا، کیا آج آپ نے اس دکان کو دیکھا بھی ہے جو میرے دادا جان کے آگے پھینکی ہے آپ نے؟ پھینکی ہے؟ دیکھیے اب بہت ہو گیا ہے. میں نے تمہارے آگے دکان پھینکی ہے؟ میری دکان کی بات نہیں ہو رہی. اچھا اب میں سمجھا کہ لفافے میں کیا دینا چاہیے ہمیں. تو یوں کہیے نا کہ خدا کے نام پر اور لوگوں کے حقوق اور نصیحت کے بہانے چچا جان آئے ہیں تاکہ اپنا رونا رو سکیں. ارے بابا، لگتا ہے ان حضرات کے لیے اس بات کو سمجھنا کچھ زیادہ ہی دشوار ہو گیا ہے. کیا یہاں کسی کو یہ یاد نہیں کہ میرے دادا جان کی دکان مارکیٹ میں ہے، جو کہ لوگوں کی دکان کے سامنے اور نیچے کی جانب ہے نا؟ آپ خود ابھی جائیے اور یہ دیکھیے کہ اس دکان میں دیواروں کی چٹک کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. چٹخ؟ ایک منٹ، تم نے جو دکان ان کو دی ہے وہ چٹخ والی تھی؟ تم دونوں جب لوگوں کو دکانیں دے رہے تھے تو کیا ان کی دیواروں پر چٹخ تھی؟ یہ کیسی بات ہے بابا؟ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی. یقیناً لوگوں کو الماری دیوار سے لگانی ہوگی جس سے چٹخ پڑ گئی ہوگی، ورنہ ہم نے تو کوئی چٹخ نہیں دیکھی. دیکھی تھی کیا؟ نہیں نا. یہ کھیل تماشے کس لیے ہیں آخر؟ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. اگر میں مال دنیا پر بحث کروں گا تو تمہاری دکان کا بھی قرض دار ہو جاؤں گا. تو نہیں ہو کیا؟ مان لیا کہ تمہاری دکان کی دیواریں بیٹھ رہی ہیں اور ان پر چار چڑک کے نشانات بھی ہیں، لیکن یہ کہاں اور تمہاری کچرا کنڈی والی دکان کہاں؟ بات مت گھماؤ. تم خود جانتے ہو کہ اگر تم ساری مارکیٹ کو بھی لفافے میں ڈال کر مجھے دے دو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ خدا جانتا ہے، تم، میں اور تمہارے بیٹے یہ سب جانتے ہیں کہ تم نے لوگوں کا مال کھایا ہے. یہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کیوں سننی پڑ رہی، جبکہ یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بھائی، دوست اور جاننے والے سے معاملہ طے کرنے میں یہ انجام ہوتا ہی ہے. تم دیکھ نہیں رہے ہو کیا؟ میرا بھائی ان لوگوں سے بھی کہیں زیادہ چھوٹا ہے کہ کوئی جھگڑا وغیرہ کر سکے، مگر میں بھی اگر آج رات تم سب کے سامنے سے بے دست و پا نہ کر دوں تو دیکھنا. تمہیں کیسے معلوم کہ میں لوگوں کا مال کھا جاتا ہوں؟ ہاں، چلو اس کو چھوڑو. تمہیں اس بات کی اتنی تسلی کیسے ہے کہ خدا بھی جانتا ہے؟ ہاں دیکھو، پچھلی بار تم نے کہا تھا کہ تم نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. اس دفعہ یہ مت کہہ دینا کہ خواب میں جبرائیل امین کو دیکھا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب دادا جان آپ کے لیے کوئی ایسی دلیل پیش کریں جس سے ثابت ہو سکے کہ خود اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں؟ لو، پھر یہ محترمہ بیچ میں کود پڑی. یہ بتاؤ، کیا تم دونوں میں یہ طے ہوا تھا کہ جہاں بھی تمہارے دادا جان ہلکے پڑ جائیں تم کوئی دوسری بات بیچ میں لے اور موضوع بدل دو؟ کیا تم نے آج تک مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ سچ پوچھوں تو ہمارے بچپن میں تم ایک تیر کمان سے چڑیا کو مارتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ بابا سے کہنا کہ تم نے نہیں ماری. چلو اگر میں قسم کھا لوں اور یہ کہہ دوں کہ تمہارے اور رامین اور ارد گرد کے لوگوں کے علاوہ کوئی ہے جس کا نام بھی تم نے نہیں سنا ہے؟ مثلاً کون؟ بہادری، سید غفور، یا وہ معذور شاہ رخی، یا یہ رامین جو یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا شخص جس کا نام آج تک تم لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوگا. تم سمجھے نہیں میں نے تمہیں کیا کہا بڈھے؟ کیوں نہیں سمجھ گیا. اگر تمہارے پاس میرے ان جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سند، ثبوت یا گواہ ہوتا تو اسے ضرور لے کر آتے. مطلب تم نہیں سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں خدا کی خدائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے لوگوں کا حق غصب کیا ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں خدا حی سبحان پر ذرا سا بھی عقیدہ نہیں ہے. میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تم پھر سے بچپن کی طرح جھوٹ بولنے اور قسمیں کھانے والے ہو گئے ہو اور مجھے اس کی خبر نہیں ہے. جلیل، اپنی اور اس دنیا کی عاقبت سے ڈرو. اس خدا کا خوف کرو جس نے تمہیں اس لیے ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ تمہارے ماتحتوں کا امتحان لے. اب اتنی بڑی مجلس میرے سامنے مت پڑو بڈھے. تم بھی ڈرو اس دن سے کہ جب تم سر اٹھاؤ اور یہ دیکھو کہ تم نے سوائے تہمتوں اور الزامات کے اپنے بھائی کو اور کچھ نہیں دیا. ڈرو اس دن سے کہ جو دن اگر میرے جیسوں کے لیے خوف کا دن ہوگا تو تم جیسوں کے لیے وہ حیرت کا دن ہوگا. جس دن خدا کا حساب کتاب سامنے آ جائے گا اور یہ واضح ہو جائے گا کہ خدا کا معاملہ میرے اور تمہارے زاویے سے اتنا الگ ہے جتنا ایک تومان کا 1,00,000 تومان سے فرق ہے. کہ یہ سمجھتے ہو کہ خدا تم لوگوں کی حمایت کرتا ہے
अब छोड़ भी दो इन हवाई बातों को कि किन लोगों ने क्या क्या कहा है नहीं तुम्हें। कहा कि किसी ने मुझे कुछ बताया है, मैंने कहा ले जाके दिखाया है मुझे। इससे मत सुनाओ मौलवी, ये बातें मेरे लिए हुज्जत नहीं हैं। इतना बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि खुदा तुम्हारे साथ है और मेरे साथ नहीं है। बस तुम समझे नहीं। अगर यही होना होता कि पर्दे हट जाएं और ये पता चल जाए कि कौन खुदा के साथ है, तो फिर कयामत के दिन के कोई माने ही नहीं रहते। कल बरोज़ कयामत ये पता चलेगा कि कौन खुदा के साथ था और कौन इस गलतफहमी में मुब्तला था कि वो खुदा के साथ है और कौन खुदा के साथ होने का ड्रामा कर रहा था। चलो दीना। अरे तुम जा रहे हो? मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं तुम्हें यह साबित करने नहीं आया हूं कि खुदा में से किसके साथ है। मैं काम इलाही और आयात के हुक्म के तहत तुम्हें यह कहने आया हूं कि होश में आओ, बस। फिर मुझे भी इजाजत दो कि इन्हीं आयात और अहकाम इलाही के तहत तुम्हें होश में लाऊं। उसके बाद जाना। मैं जलील न होऊंगा अगर मैंने तुम्हें जगाए बगैर जाने दिया। तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम कहते हो कि तुम सच्चे हो और मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं लोगों का माल हड़प रहा हूं। मैं तुमसे दलील मांग रहा हूं तो तुम बातें घुमा रहे हो। अब मैं तुम्हारे लिए दलील पेश कर रहा हूं। अब तुम देखते जाओ। खुदाया, ये मैं हूं, जवील जावेदियान। अगर तू नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर तू खुदा है, अगर तू खुदा है और इस बूढ़े शख्स का खुदा है और मेरे हक में नहीं है, तो मैं तुझसे ये चाहता हूं कि इसी वक्त यहां पर खड़े खड़े पत्थर का बना दे। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे पत्थर का कर दे। अगर मैंने लोगों का माल खाया तो मुझे पत्थर का कर दे। अगर ये बुढ़ा तेरा भेजा हुआ है और मेरी हिदायत के लिए भेजा है तो अभी इसी वक्त मुझे पत्थर का कर दे। जलील, इन बच्चों के सामने ये तमाशा मत करो जलील। क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो? जो खुदा शरायत के तहत खुदाई करे, जो खुदा तुम्हारी इन फजूलियात के तहत अजाब नाजिल करे, वो खुदा जिसका होना और ना होना तुम्हारे पत्थर हो जाने पर मुनस्सिर हो, खुदा नहीं है। वो सिर्फ एक ख्याली खुद साख्ता मखलूक है जिसे तुमने फर्ज कर लिया है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब भी मुझे ही बोल रहे हो। चलो तुम अपने खुदा से कह दो कि मुझे पत्थर का बना दे। तुम मुझसे ज्यादा सच्चे हो, तहज्जुद गुजार हो, ऐसा बहुत कुछ हो जो मैं नहीं हूं और तुम हो, है ना? देखा ना तुमने बच्चों, तुम्हारे नाना जान पत्थर के नहीं हुए। देखा ना आदिया साहिबा, आपने। दादा जान, आपका फर्ज बताना था जो आपने पूरा कर दिया है। मेरे ख्याल से चचा की दुआ काफी पहले से पूरी हो चुकी है। उन्हें खुद ही पता नहीं है। बेहतर होगा कि हम चलें। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी लगती है, चुटकुले छोड़ने वाली लड़की। तुम्हारी आस्तीनों में हर वक्त एक चुटकुला तैयार रहता है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, चुटकुले छोड़ने वाली। आप किसी के सर पे टोपी ना रखें चचा जान। किसी सवाल के जवाब के तलबगार नहीं है। आपको कोई जवाब चाहिए ही नहीं। दादा जान, हम ऐसा कुछ भी कर दें कोई फायदा नहीं। चलिए। हाँ, अब तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि मेरे लिए यह अहम नहीं है कि तुम बेदार हो या ना हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इस घर के तमाम अफराद को पता चल चुका है कि तुम्हें यहां तक मेरे जितना भी अपने खुदा पर भरोसा नहीं है। मेरे हुकूक उन्नास कहलाने का भरोसा तो दूर की बात है। मतलब ये सच है? क्या तुम एक बगैर जवाब के सवाल के तलबगार थे? देखो खलील, अगर तुम ये साबित कर दो कि मैंने किसी का हक खाया है, तो हमारे माँ बाप की तुर्बत की कसम, इन दोनों बच्चों की जान की कसम, तुम किसी भी आह या बद्दुआ के जरिए से दलील पेश कर दो कि खुदा तुम्हारे साथ है और मेरे साथ नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत और गिरा हुआ शख्स हूँगा। कहो तो अभी इन सब के सामने लिख कर दस्तखत कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन से दस्तखत? चचा जान, जो आपको कहना था वो आप कह चुके, जवाब भी मिल गया आपको। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अपना हाथ नीचे करो डॉक्टर। जलील, मैं किसी को बद्दुआ देने के लिए यहाँ नहीं आया था। अरे बाबा शाहीन, आप इन लोगों को रास्ता दिखाओ बाहर का। जाइए हाजी साहब, जाइए। ताता जान, मैंने आपसे कहा भी कि चलिए। सामने से हटिए रामिन साहब। रुको खलील,
मतलब तुम्हारा खुदा तुम्हारी सारी उम्र की इताअत और बंदगी के बदले में भी तुम्हारे सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अपने भाई के लिए बद्दुआ मत करो। इसके बजाय ये कह दो कि ये छत उठा ले। नहीं नहीं, इसके बदले ये कह दो कि इस दीवार से एक हाथी बाहर आ जाए। तुम अपने इन कामों से हत्ता के आज के इन छोटे बच्चों के तखय्युलात को काने नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, कुरान के आने के साथ साथ नबियों वाले मौजज़ात के दरवाजे बंद हो गए हैं ताकि ईमान अकल और मारिफत के जरिए से फैलना शुरू हो। जो ईमान एक दीवार से हाथी के निकल आने से या एक बच्चे के काने हो जाने से पैदा होता है, वो सामरी के बछड़े की आवाज से खत्म भी हो जाया करता है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अब कोई जरूरत भी नहीं है चचा। दादा जान, खुदा की कसम आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बात सुनो जबान दराज लड़की, अब अगर एक लफ्ज भी उल्टा सीधा तुम्हारे मुंह से निकला या ऐसी बकवास दोबारा की तो मैं खुद तुम्हारे दादा जान को तुम्हारे सोग में रुला दूंगा। अभी तक भी जो तुम्हें मुंह चलाने दिया है वो भी सिर्फ तुम्हारी सजीव से दादा जान के सर का सदका था। लिहाजा बकवास बंद करो। अच्छा, तो तुम्हारा भी अकीदा यह है कि दीवार से हाथी का निकल आना एक मौजज़ा और तुम्हारा भी बस का काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो शिफा के लिए दुआ करने पर तो अकीदा है ना तुम्हारा। क्या कर रहे हो जलील? रामीन, ये है मेरी अपाज बीवी और ये रहे तुम। कुछ ऐसा करो कि ये मेरी आंखों के सामने अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मेरी नामूस की कसम, मेरा सब कुछ मैं खुदा की राह में लुटा दूंगा। बाबा बस भी कीजिए। या तो अपनी दुआ करो मौलाना साहब, या फिर अपना रास्ता नापो और अपनी जिंदगी के इन बाकी मानदा 2 दिनों पर रहम करो, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी जानमाज पे बर्बाद कर दी। दादा जान, आप खड़े क्यों हैं? तुम मुंह बंद कर रही हो या नहीं? हाजी साहब, मैं गुजारिश करती हूँ चले जाइए। आपके चले जाने से आपकी इज्जत और एहतराम में जरा बराबर भी कमी नहीं आएगी। क्या करना चाहते हो साहब? दुआ या इकरार? चाचा जान, मैं गुजारिश करती हूँ आप चले जाइए। चाचा जान, मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे, चले जाइए। इल्तिजा करता हूँ। दादा जान, आपको जान की कसम है, चलिए। रुक जाओ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ तुम्हारे बाप को बेदार करने के लिए आया हूंगा। मैं एक हकीकत से तुम्हें बाखबर कर देता हूं। जिसने मेरी दुकान बेचने से मुझे रोका, जो मुझे इस घर के दरवाजे तक ले आया, ना वो तुम थे और ना ही तुम्हारा छोटा बेटा। यहां तक कि मेरी पोती की बात भी उसकी असल वजह नहीं थी। मैं यहां इसलिए आया हूं जलील, क्योंकि मुझे यहां आना चाहिए था, क्योंकि खुदा ने चाहा था कि मुझे यह साबित कर दे कि मेरे पास तुम्हारे घर आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मगर तुम कोशिश कर रहे हो कि अपने घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाओ, ये जबकि तुम्हारी बीवी कह रही है कि मैं अपनी बेएहतरामी और बेइज्जती से ना घबराऊं। मुझे एक ही मतलब समझ में आ रहा है, जिसे इस बेइज्जती से भरपूर दरबार में इम्तिहान देना है। खलील कौन होता है कि खुदा उससे चाहे और वो अपने आप को इससे ज्यादा नीचे न गिराए? दीना, लाओ मुझे तो वो इजाज़े मुबारक इलाही। दीना।